बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है स्टूडेंट्स खैर वाफियत के साथ हैं। आज हम लोग एक नए लेसन के साथ मिले हैं और आज का लेसन नंबर 31 है एंड टुडे आवर टॉपिक इज़ द ऑर्बिटल स्पीड ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट। सो लेट्स स्टार्ट। हमें सबसे पहले नंबर पे ऑर्बिटल स्पीड ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट डिस्कस करनी है, लेकिन उसके लिए हमारे पास कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन और कुछ वैल्यूज़ का होना भी ज़रूरी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल लेट कंसिडर द अर्थ and the mass of earth is me and another object like a satellite, and this is launched at some height, and its mass is m. The distance between these two bodies are, the first one is the radius of earth, and then by the addition of this we have another distance like this, and we consider it as height. But as a combined effect we consider the total distance from the center of the satellite to the center of the earth as r, which is equal to r plus h. So now this is the total distance r. Students, here it is. This is an object called a satellite that revolve around the earth in a specific orbit. But how can we consider the satellites revolve around the earth? So student, यहाँ पर सबसे पहले नंबर पे हमारे पास एक कंसेप्ट जनरेट होता है कि there will be a force, or there was a force that helps the satellite to revolve around the earth. So let's consider the direction of the force is always towards the center of the earth, and what type of the force it is, this is called the centripetal force. So let's consider the formula for the centripetal force. Now the formula of the centripetal force is mv square over r. इसके अलावा और कौन कौन से फार्मूलाज यूज़ किए जा सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर फोर्स जो इसको कीप करती है टू रोटेट और रिवॉल्व अराउंड द अर्थ इन अ सर्कुलर पाथ, दैट इज कॉल्ड द सेंट्रीपिटल फोर्स, एंड दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन और फर्स्ट फार्मूला. इन सेकेंड देर इज अनदर फोर्स एक्टिंग एज अ वेट. सो लेट कंसिडर दैट F इज इक्वल टू द वेट इज इक्वल टू द mg ऑफ दिस ऑब्जेक्ट. Student, according to this simple or basic information, we have concluded our two formulas. The first one is for the centripetal force and second one is the weight of an object. Now just compare these two as the force or force. So we can compare these two are mg is equal to mv square over r. In this lesson we have to find out the orbital velocity. So just separate the v. When you want to separate the v, you have to shift these two alphabets on the other side as mgr over m, and this is equal to v square. Here is m and m are same, so cancel each other. The thing left are gr is equal to v square. स्टूडेंट, जब भी कोई चीज़ फाइंड आउट करनी होती है ना, उसके अंदर हम हमेशा ये करते हैं कि हम उसको स्क्वायर की फॉर्म में फाइंड आउट नहीं करते. सो लेट्स टेक अ स्क्वायर ऑन बोथ साइड. बाय टेकिंग अ स्क्वायर ऑन बोथ साइड विल गेट द वैल्यू और इक्वेशन एज v. gr is equal to v. This is our basic formula that we use to find the orbital speed of satellite. But student, let's see what is meant by the r. Actually, according to the diagram, r is equal to r plus h. And what is the difference between r and h? R is the distance from the center of earth to the circumference of earth, and h is the height from the circumference
or from the surface of earth to the center of satellite. And in a comparison of these two, student, R is too much greater than the height above the surface of earth. Just as a comparison, let's see, the radius of earth is 6400 kilometer and the height mostly we use for the satellite, these are 600 or 700 kilometers mostly. So 6400 is more greater than the 600 kilometers. So just because of these values, we just consider R is approximately, R plus H is approximately is equal to R. हम सिंपली अपने फार्मूला के अंदर R भी लिख सकते हैं, और अगर हम खाली R लिखेंगे जो R प्लस H के इक्वल था, सो वी कैन ऑल्सो राइट इज एज सिंपल R. सो हम ये कंक्लूड करते हैं. लेकिन स्टूडेंट जब हमने फाइंड आउट करनी होती है वेलोसिटी, सो वी हैव टू सब्स्टिट्यूट सम वैल्यूज इन द गिवन फार्मूला. सो लेट कंसिडर सम वैल्यूज. फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ पर अब हमारे पास एक और कंसेप्ट जनरेट हो रहा है, और वो ये कि यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स हम अर्थ की यूज करेंगे बिकॉज इट इज लार्जर देन द सैटेलाइट. रेडियस ऑफ अर्थ यानी टोटल डिस्टेंस बिटवीन दीज टू बॉडीज. But when we start discussion about the two bodies or the interaction between two bodies, suddenly a new concept generated in our mind is the law of gravitation, which describes as the force of attraction or repulsion between two bodies is directly proportional to their product of masses and inversely proportional to the square of the radius or distance between them. So the formula for the law of gravitation we have concluded as F is equal to Gm me over R square. But now to calculate the gravitational force or gravitational strength of the earth, we have also calculate the mass of earth. और मैस ऑफ अर्थ को स्टूडेंट्स हम लोग लास्ट टाइम कैलकुलेट कर चुके हैं और उसकी वैल्यू भी हमने फाइंड आउट की थी. अब यहाँ पर इस फार्मूले के साथ कंपैरिजन करने के लिए हमें एक और फार्मूला जो है वो यहाँ पर सपोज करना पड़ेगा. जैसे फॉर एग्जांपल F इज इक्वल टू Gm me over R स्क्वायर. और जब मैस ऑफ अर्थ हमने फाइंड आउट किया था, या जी की वैल्यू जो हमें स्टूडेंट यहाँ पर रिक्वायर्ड है, अगर हम उसे सब्स्टिट्यूट करना चाहें, सो वी हैव अ कंपैरिजन बिटवीन दीज टू ऑब्जेक्ट्स और फॉर्मूलाज. F is equal to W is equal to mg. By comparing these two kind of the equations, we will get the answer as mg is equal to Gm me over R square. And when we separate the g, so let's see. M is cancelled with this M, and G is only become Gme over R square. Now this is another formula. ये स्टूडेंट हमने अपने लास्ट टॉपिक जो मैस ऑफ अर्थ का था उसमें से कंक्लूड किया कि जब हमने अपने वेट को लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से कंपेयर किया था तो हमारे पास मैस ऑफ अर्थ आया था. स्टूडेंट यहाँ पर हमें अपने इस फॉर्मूले के अंदर कैलकुलेशन के लिए g की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी थी. सो जस्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यू इन अबव फॉर्मूला. इक्वेशन नंबर 4 इन इक्वेशन नंबर स्टार. और हम इस स्टार वाली इक्वेशन को 3 का नेम भी दे सकते हैं. When we substitute the values in this formula, students, let's consider what will happen. V is equal to under root. We have to substitute the value of G in this formula, and the value of G is Gme over R square and R. So student, यहाँ पर भी अगर आप देखें तो R एक की वैल्यू R स्क्वायर से कैंसिल होती है, और हमारे पास ऑर्बिटल वेलोसिटी के लिए जो फॉर्मूला स्टूडेंट बच जाता है, दिस इज
जी एम ई एंड ओवर आर। स्टूडेंट सेम कंसिडरेशन में हम यहां पर कुछ वैल्यूज एज्यूम करेंगे जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। यानी फॉर एग्जांपल हमने ये लास्ट टाइम कहा था कि हम अपने इस फॉर्मूले को, यानी जिसमें हमने आर सब्स्टिट्यूट किया था, हम अपनी इस इक्वेशन नंबर 3 को ऐसे भी लिख सकते हैं, V इज इक्वल टू G इंटू आर प्लस एच। यानी R की जगह पर हमने R प्लस एच की वैल्यू को एज्यूम किया था। तो सेम काम हम यहां पर भी करेंगे, R की जगह पर R प्लस एच की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, G M E over R plus H. Now this is a final formula. Now we have to substitute some values in this formula to find out the orbital velocity of the satellite. So let's consider the values. Student, first of all, the value of G we have is 6.673 into 10 raised to power minus 11. The second, the mass of earth we have is 6.0 into 10 raised to power 24. The radius of earth is 6.4 into 10 raised to power 6. And what is meant by the h? Student, let's consider the height of some satellite. The normally height of the satellite we considered it 600. This is the value in meter, and when we convert it into a kilometer, it will become a simply 6400 kilometers. By adding these two means R plus H, 6400 plus 600, it will become a 7 and 000 kilometers. When we convert the kilometers into meters, the answer will become as 7.0 into 10 raised to power 6 meter. Now this is R plus H in meter that we have to use, because the common values are in a standard units, which are meter, second or kg. So the value of the gravitational constant is in a Newton meter square per kilogram square. The mass of earth is in the value of kg and the radius in meter. So we just conclude all the values in a standard units, means Newton, meter, kilogram, meter and meter. So now just substitute these values in the above formula and the velocity will become as, the value of G is 6.673 into 10 raised to power minus 11. Mass of earth 6.0 into 10 raised to power 24. And the value in the denominator is 7.0 into 10 raised to power 6. So when we calculate these values, the answer of the velocity will become as 7.545 meter per second, which is approximately 8 meter per second. So this is the orbital velocity of the artificial satellite. ये स्टूडेंट हमारे पास हमारी आर्टिफिशियल सैटेलाइट की जो है वो वेलोसिटी है, जो हमें कंक्लूड हो गई अपने इन फार्मूलाज की मदद से। तो स्टूडेंट आपने इस वैल्यू को याद रखना है। दिस इज इन मीटर पर सेकेंड. व्हेन वी कन्वर्ट इट इनटू द किलोमीटर पर आवर, द वैल्यू ऑफ द velocity, orbital velocity of the artificial satellite will become as the 29,000 kilometer per hour. So ये स्टूडेंट आपके पास दो वैल्यूज हैं जो आपने याद रखनी है। स्टूडेंट आपकी बुक के अंदर जो आपको लॉन्ग क्वेश्चन लिखवाया गया है, ये आपके एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट का। इसको आपने खास तौर पर याद भी रखना है। इसी तरह जो इससे पहले हमने लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस किया था स्टूडेंट, वो था मैस ऑफ अर्थ का, और जो फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन था स्टूडेंट इस चैप्टर का वो था लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो ये आपका थर्ड और लास्ट लॉन्ग क्वेश्चन है। इसकी डिटेल मैं दोबारा से आपको बता देता हूँ कि हम इसको किस तरतीब से, किस पैटर्न से लिखेंगे। स्टूडेंट बुक के अंदर अगर हम डिस्कस करें तो आपकी डिटेल यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक ख़त्म कर देते हैं। यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक ख़त्म कर देते हैं।
लेकिन इस वैल्यू के साथ स्टूडेंट आपको लास्ट में ये कंक्लूडेड वैल्यूज बता दी जाती हैं कि 8 मीटर पर सेकंड और 29,000 किलोमीटर पर आवर ये आपकी ऑर्बिटल स्पीड है। लेकिन स्टूडेंट वहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये किस तरह से आंसर आया। तो इसलिए मैंने आपको आपकी प्रॉपर फर्दर जो कैलकुलेशंस थी वो भी बता दी हैं, और अगर आप ये भी लिख लें साथ तो बहुत ही अच्छा इंप्रेशन जो है वो जाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर आपके इस क्वेश्चन को लिखने के लिए आपके पास जो प्रॉपर हेडिंग्स हैं वो मैं यहाँ गाइड कर देता हूँ। सबसे पहले नंबर पे स्टूडेंट यू हैव टू राइट द डेफिनेशन ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट, देन यू हैव टू राइट द एक्सप्लेनेशन सिंपली। अपनी एक्सप्लेनेशन में स्टूडेंट आप अपनी डायग्राम को डिस्क्राइब करेंगे। आपकी बुक में डायग्राम भी नहीं बनी, आप सिंपल यही डायग्राम आप ड्रॉ कर सकते हैं, जिसमें आपने सिर्फ और सिर्फ ये बताना है कि एक अर्थ है और अर्थ से थोड़ी सी हाइट पर एक ऑब्जेक्ट जिसका मैस m है वो प्लेस्ड है और वो एक स्पेसिफिक ऑर्बिट में रोटेट कर रहा है विद द हेल्प ऑफ द सेंट्रीपिटल फोर्स। यहाँ पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट करती है, जिसकी वजह से आपके पास ऑब्जेक्ट का वेट एज अ फोर्स वर्क करता है। जो हमारे पास टोटल डिस्टेंस है वो r के इक्वल है। हमें टोटल r की वैल्यू का नहीं पता, मोस्टली हमें रेडियस ऑफ अर्थ का पता है, इस हाइट का नहीं पता होता क्योंकि ये डिफरेंट होती है, तो हम इसलिए यहाँ पर इसको हाइट कंसिडर करते हैं। लेकिन कैलकुलेशन के लिए मैंने नॉर्मल जो आपके पास हाइट हम लोग सैटेलाइट के लिए जो नॉर्मल कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हैं या जीपीएस सैटेलाइट्स हैं उनके लिए जो यूज़ करते हैं वो मैंने बता दिया था 600 किलोमीटर का। तो स्टूडेंट हमने इसको हाइट कंसिडर किया। इसी तरह लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंग, सेंट्रीपिटल फोर्स और वेट के अकॉर्डिंग, इन दोनों फार्मूलाज को आपस में जब हमने कंपेयर किया तो कंपेयर करने के बाद एक फार्मूला ड्राइव आउट हुआ एंड फर्दर डेरिवेशन इज गोइंग ऑन। स्टूडेंट इसी तरह एक्सप्लेनेशन के साथ आपके पास आती है डायग्राम जिसको आप एक्सप्लेन करेंगे, फिर आपके पास आती है डेरिवेशन, मैथमेटिकल डेरिवेशन, और लास्ट में स्टूडेंट जो आपके पास पॉइंट आता है वो है वेलोसिटी और स्पीड। जो हमने फाइंड आउट करनी थी। तो ये आपके पास कुछ आपके लॉन्ग क्वेश्चंस की बेसिक हेडिंग्स जो हैं वो स्टूडेंट यहाँ पर बन जाती हैं, जिस तरतीब पे आप अपने लॉन्ग क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। और उम्मीद है कि आज का ये लॉन्ग क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आसान और सिंपल आपके लिए होगा और आपको ये क्लियरली समझ भी आ चुका होगा। अगर फिर भी इससे रेलेवेंट कोई इशू हो, कोई क्वेश्चन हो तो स्टूडेंट आप कमेंट्स के अंदर जो है वो पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाअल्लाह ताला हम अपने इस लॉन्ग क्वेश्चंस जितने भी हमने पढ़े या शॉर्ट क्वेश्चन जो हमने अपने इस चैप्टर के अंदर डिस्कस किए हैं उन सब की डिटेल मार्किंग करेंगे। आपको बता दिया जाएगा कि कहाँ से कहाँ तक क्या क्या चीज़ याद करने वाली है, कौन कौन से की पॉइंट्स और MCQs हैं जो आपकी बुक के अंदर अवेलेबल हैं जो आपने याद रखने हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़ व नासर।